लास्ट टाइम मैंने आप लोग वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू ट्राई एंड नो कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम होता है या व्हाटएवर. ओके, सो थोड़ा सा ना मैं एक आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ कि व्हाट दिस नर्वस सिस्टम इज ऑल अबाउट. न्यू प्रेजेंटेशन आ गया. ओके, यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल. फाइन, अभी थोड़ा ध्यान दो इधर ना, ठीक है. जैसे मैंने बताया कि बेसिकली देर इज वन important mechanism which we have, and what is that? So that is basically काय ग सर महेश ट्युटोरियलच्या नावाने कोणतं कार्ड आहे? guys, just give me 2 minutes, huh? Okay, so चलो ध्यान दो अभी इधर हम लोग. As we were talking about a very important mechanism that is known as the control and coordination. Okay, ये एक important mechanism होता है. Now, as I said that there are two systems which are involved. One is the nervous system and the other one is the endocrine system. ठीक है, सब लोगों को सुनाई दे रहा है ना? Now, these two systems, hello, मेरी आवाज आ रही है ना? तो बात तो करो भाई, बात करने के लिए किधर खर्चा होता है. Okay, so nervous system and endocrine system. Nervous system basically is responsible for transmission of the impulses, and endocrine system is going to release the hormones, and these two systems are working in coordination with each other. दोनों coordination के साथ काम कर रहे हैं. Let us try and understand कि ये systems किस तरीके से coordinate करते हैं एक दूसरे के साथ for a particular type of a function. तो ये कौन सा और कैसा function रहेगा, that we will try to understand. Now, अभी imagine करो, let us take an example here, a very simple example here. Say for example, we have now a organ here, and that organ is known as, say for example, stomach. ठीक है, stomach ही organ है. Now this organ, this stomach organ requires a hormone, and that hormone is thyroxine. ठीक है, अच्छा, thyroxine ये हार्मोन कौन रिलीज करता है? बोलो, thyroxine hormone is released by whom? फटाफट बोलो. हाँ, very good, Ishita. So it is released by the thyroid gland, okay, which is present in the neck, right? But can stomach directly connect with the thyroid gland? No. No. So naturally stomach still needs, matlab stomach has to send some kind of a message to the thyroid gland so that it will start releasing the
hormone. But what stomach does is that stomach is going to stimulate, क्योंकि उसको क्या करना है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है, लेकिन वो डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दैट ग्लैंड. सो इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट अ ग्लैंड प्रेजेंट और अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ब्रेन कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस. ठीक है, ये क्या होता है ये हम लोग बाद में ऑफ कोर्स पढ़ने वाले. Just remember that hypothalamus is a part of the brain. Now this hypothalamus will be stimulated by whom? By the stomach. वो nerve impulse भेजेगा किधर? Hypothalamus को. In turn, what hypothalamus is going to do is hypothalamus is going to stimulate a gland present in the brain, and that gland is called as pituitary. Okay. And pituitary, which is considered as the master of all the endocrine gland. Now, how this pituitary will be stimulated here? So, यहाँ पे hypothalamus ना एक हार्मोन रिलीज करता है, मतलब जैसे बाकी के ग्लैंड्स रिलीज करते हैं वैसे भी एक हार्मोन रिलीज करेगा, and that hormone is known as, that hormone is called as, किसको स्टिमुलेट करना है? पिट्यूटरी को. बराबर है. पिट्यूटरी किसको, चलो पहले पिट्यूटरी किसको स्टिमुलेट करेगा? To whom pituitary is going to stimulate? जैसे पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन मिलेगा हाइपोथैलेमस से, तो वो किसको स्टिमुलेट करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को. कैसे स्टिमुलेट करेगा? बाय रिलीजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एज TSH. मतलब पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है कॉल्ड एज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड. जैसे ही थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा, इट स्टार्ट्स रिलीजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एज थायरोक्सिन, व्हिच देन रीचेस द स्टमक वाया ब्लड. समझ में आ रहा है? Are you getting this? Yes. Good. लेकिन यहाँ पे ना हाइपोथैलेमस अपना एक खुद का काम कर रहा है. बराबर है. मतलब हाइपोथैलेमस इज रिलीजिंग अ हार्मोन हियर. फॉर होम? फॉर स्टिमुलेटिंग द पिट्यूटरी. और पिट्यूटरी की उसको क्या मैसेज भेजना है? पिट्यूटरी को इट वांट्स टू सेंड अ मैसेज दैट यू नीड टू व्हाट? यू नीड टू बेसिकली ask thyroid to release thyroxine. मतलब पिट्यूटरी को इस तरीके से इंपल्स चाहिए, so that you know पिट्यूटरी will start releasing thyroid. लेकिन कैसे रिलीज करेगा? बस रिलीजिंग द हार्मोन कॉल्ड एज TSH. मतलब हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी को बोलना पड़ेगा कि भाई TSH रिलीज करो. And how it will be done? It will be done by another important hormone. और वो हार्मोन कौन सा होता है? This is called as TSHRH. Stands for thyroid stimulating hormone releasing hormone. समझ में आ रहा है? तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन. वेट अभी मत लिखो आलोक, मैं बोलता हूं. जैसे ये हार्मोन रिलीज करेगा थायराइड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाएगा, तो पिट्यूटरी रिलीज करेगा TSH. TSH किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड को. तो थायराइड रिलीज क्या करेगा? थायरोक्सिन. थायरोक्सिन कहाँ रिलीज होगा? ब्लड में. ब्लड से किधर जाएगा? स्टमक में. एंड डज द स्टमक विल स्टार्ट फंक्शनिंग. ठीक, यहां तक ठीक? किसी को कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज? किसी का माइक चालू है? माइक चालू है तो बात करो, अदरवाइज मत करो. ये देखो हमारा ही माइक चालू है. अरे मास्टर क्लास ऑफिस की आवाज आ रही है, तुम्हारा माइक चालू है मैडम. चलो, नहीं अभी मत लिखो, मैं बोलता हूं आपको. लिखना है लेकिन अभी इमीडिएटली नहीं. वेट फॉर दिस एंड अंडरस्टैंड. लोहिता इज रेजिंग द हैंड. चलो, अच्छा अभी यहां तक तो समझा सबको? क्लियर एवरीवन कि कैसे ये काम हो रहा है? सपोज अभी स्टमक को ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं चाहिए तो रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि किसने स्टिमुलेट किया? स्टमक ने. तो ये प्रोसेस तो चालू रहेगा. दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप अनलेस इट गेट्स अ नेगेटिव इंपल्स. तो यहाँ पे क्या होगा ना, स्टमक इज गोइंग टू सेंड अनदर इंपल्स टू हाइपोथैलेमस, आस्किंग हाइपोथैलेमस not to release thyroid hormone.
मतलब अभी थायराइड हार्मोन नहीं चाहिए, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पिट्यूटरी का ये जो एक्शन है उसको मुझे बंद करना पड़ेगा, यस और नो? यस। गुड। तो अगर मुझे पिट्यूटरी का एक्शन बंद करना है, मतलब आई नीड टू आस्क, मतलब हाइपोथैलेमस नीड्स टू रिलीज अ हार्मोन व्हिच विल स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी, विल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी। इनहिबिट का मतलब आता है रोकना, स्टॉप करना। तो वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा एक हार्मोन कॉल्ड एज TSH-IH, स्टैंड्स फॉर व्हाट, इनहिबिटिंग हार्मोन। टू इनहिबिट का मतलब आता है टू स्टॉप। तो ये पूरा ये जो मैकेनिज्म है, ये जो प्रोसेस है, इसको बंद करना चालू कर देगा। द मोमेंट TSH-IH इज रिलीज्ड, पिट्यूटरी विल स्टॉप द रिलीज ऑफ TSH। जैसे ही TSH बंद हो गया, थायराइड का स्टिमुलेशन बंद। जैसे ही थायराइड का स्टिमुलेशन बंद, थायरोक्सिन रिलीज बंद, एंड द अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन इन द ब्लड विल अगेन कम टू नॉर्मल। समझ में आ रहा है अभी ये? गुड। So this is known as what? This is called as positive feedback. Facebook nahi. This is known as negative feedback, not the Facebook. Okay. So it is basically the positive feedback and the negative feedback. And these feedbacks will help in carrying out all the functions. Jisme hypothalamus is a part of what? Hypothalamus is a part of the brain. So can I say that hypothalamus acts as a connecting link between the nervous system and endocrine system? बोलता हूं मैं प्रज्ञा, पहले मेरे क्वेश्चंस को समझो। Can I say that hypothalamus acts as a connecting link between the nervous system and endocrine system? Yes, Yes sir. or no? Good. बराबर है। तो इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब ये भी होता है कि hypothalamus which is a part of the brain, अगर ये ब्रेन का पार्ट है तो ये कौन से सेल से बना होगा? ये बना होगा न्यूरॉन्स से। मतलब हाइपोथैलेमस में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं विच आर गोइंग टू सीक्रेट दी हॉर्मोन्स। तो मतलब ऐसे भी न्यूरॉन्स है जो रादर देन ट्रांसमिटिंग द इंपल्स विल रिलीज द हार्मोन। बराबर है। तो वो कौन से न्यूरॉन्स, वो कौन से सेल्स रहेंगे? तो उनको नाम दिया गया है न्यूरो सिक्रिटरी सेल्स। ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज द न्यूरो सिक्रिटरी सेल्स। समझ में आ रहा है? The one which is going to release what? The one which is going to release the hormones. So TSH-RH is releasing hormone. TSH-IH is inhibiting hormone. To inhibit मतलब to stop. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Which gland is considered as master of all the endocrine gland? पिट्यूटरी। Very good. लेकिन पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन कर रहा है? Hypothalamus. मतलब कैन आई से दैट हाइपोथैलेमस ये मास्टर का मास्टर है? Yes, sir. बराबर है। Yes, मतलब sir. ये कौन हो गया? दादाजी हो गया, ये सचिन तेंदुलकर हो गया हमारे लिए। बट स्टिल हाइपोथैलेमस इज नॉट कॉल्ड एज द मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाई? तो एक्चुअली मास्टर तो हाइपोथैलेमस को बोलना चाहिए ना, हम लोग पिट्यूटरी को बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्यों ये खिताब हाइपोथैलेमस से छीन लिया गया है? वेरी गुड भूषण। भूषण ने करेक्ट आंसर दिया। एनी अदर आंसर? भूषण का आंसर अभी नहीं बोलूंगा मैं। नो सानिका, थोड़ा करेक्ट करो अपने आप को। चलो आप बात भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो। Why hypothalamus is not called as the master of the endocrine gland, though it controls pituitary as well, or rather it controls pituitary only. It is not called as master of endocrine gland. मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं, कि खाना खा रहे हैं, because I don't know. Ishita is saying okay. अच्छा ठीक है इशिता, इट इज फाइन, थोड़ा सा नजदीक हो, स्टिल नॉट बिंगो ऑन टारगेट। नहीं आदित्य, वेरी गुड। प्रिया और भूषण ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, बिकॉज हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्योंकि हाइपोथैलेमस न्यूरॉन से बनता है। बाकी के ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड न्यूरॉन से बनते हैं क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? बाकी के सारे ग्लैंड एपिथेलियल टिश्यूज से बनते हैं, एपिथेलियल सेल्स से बनते हैं। दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर व्हिच डेवलप्स फ्रॉम द न्यूरॉन बट स्टिल हैज अ कैपेसिटी टू कंट्रोल पिट्यूटरी।
तो इसके लिए मैं इसको मास्टर का मास्टर सचिन तेंदुलकर बोलता हूँ, है ना, मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं ना उसको हम लोग, तो वैसा ये सचिन तेंदुलकर है हमारे बॉडी का हाइपोथैलेमस। समझ में आ रहा है मैकेनिज्म? अभी आप कोई भी फंक्शन लो, वॉट एवर यू टेक, this is how the mechanism will take place. If any organ, any structure, any cell, if it requires any type of a hormone, then which gland needs to, which part needs to be stimulated, that is hypothalamus. समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ, तो हाइपोथैलेमस हमेशा स्टिमुलेट होगा। सपोज फॉर एग्जांपल, अभी ये थायराइड तो हो गया, सपोज अगर एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना है, कौन स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को? हाइपोथैलेमस। नहीं, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कौन करेगा? वेरी गुड, दैट इज पिट्यूटरी। वेरी गुड। पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा इसको स्टिमुलेट करने के लिए? पता है आपको? इट इज कॉल्ड एज ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिको मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स, ट्रॉफिक का मतलब आता है टू स्टिमुलेट, द हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स। फिर अगर हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना है तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? ACTH। लवली, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। अगर वहीं अगर उसको रोकना है तो क्या रिलीज करेगा? TSH। ACTH। फैंटास्टिक, गुड। समझ में आ रहा है आपको? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो यू टेक एनी हार्मोन, अभी जैसे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स लिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरगेट गोनाडोट्रोपिक, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी। लेकिन बताएगा कौन पिट्यूटरी को? हाइपोथैलेमस। तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस? SHRH। GHRH। GSH कहाँ जा रहे हो यार? GHRH। समझ में आ रहा है? और वही अगर नहीं चाहिए रहेगा तो क्या रिलीज करेगा? GHRH। GHIH। वेरी गुड। एंड ग्रोथ हार्मोन इज नोन एज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन ऐसा भी बोलते हैं उसको। सोमा मतलब बॉडी सेल्स, क्योंकि सारे सेल्स को स्टिमुलेट करता है। सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। ये पूरा मैकेनिज्म हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी में इसी तरीके से होता है। देयर इज नो अदर वे। यहाँ पे कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। इफ एनी ऑर्गन वांट्स एनी टाइप ऑफ अ हार्मोन, दैट ऑर्गन हैज टू फर्स्ट स्टिमुलेट, आस्क हाइपोथैलेमस ओनली। देयर इज नो ऑप्शन। कभी भी ऐसा हम बॉडी में करप्शन नहीं होता है। स्टमक ऐसे अचानक थायराइड ग्लैंड को डायरेक्ट बोल देगा, अरे तू कर ले रे एडजस्ट, तू टेंशन मत ले, मैं हाइपोथैलेमस को मैनेज कर लूंगा, तू भेज मेरे को हार्मोन। नॉट पॉसिबल। करेक्ट? किसी भी तरीके का करप्शन हमारे बॉडी में होता नहीं है, एडजस्टमेंट होता नहीं है। समझा? हेलो, यस। गुड। अभी इसको लिख लो। एकदम अमन, एकदम मोजामा। ये ऐसा ही चार्ट बनाने का नुपुर, एग्जैक्टली जैसा मैंने बनाया वैसा ही बनाने का। हाँ, कलर भी कर। डिस्टेम्पर लेके आ, एशियन पेंट्स का कलर लेके आ, फिर मारना उसको नोटबुक पे अपने।
अमन इज आस्किंग कि सर कलर भी करना है क्या, तो मैंने इसके लिए अमन को आंसर दिया कि एशियन पेंट्स लेकर आ नूपुर। कुछ नहीं, पेजेस छोड़ने साई प्रसाद, बस यही लिखना है। ये पिछले 20 मिनट से यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आधे घंटे से यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। फिनिश्ड? शुड़ुक कड़े, हेलो Sir, 1 minute. Done, sir. Shravani is asking, is there any other part in the brain which works like hypothalamus or helps it? No. There is one more gland actually which is known as hypothalamus से connected होता है, ना sorry epithalamus से connected होता है, that is pineal gland. But otherwise hypothalamus का जो function होता है ना, वैसा function कोई नहीं करता है। करेक्ट, इशिता बोल रही है सालों साल चलेगा एशियन पेंट्स। इशिता पहले सालों ऐसे लिखा ना तो मैं डर गया, बोले ये गाली क्यों दे रही है। Just joking. चलो आगे बढ़े। क्या तो ऐसा ही ना, ऐसा ही ये पूरा फंक्शन रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो अगर आप देखोगे ना तो पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज, जैसे मैंने बताया ना सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन रहेगा। ओके उसके बाद थायरोट्रॉपिक होता है तो टीएसएच रहता है। फिर गोनाडोट्रॉपिक होता है, दैट इज एफएसएच एंड एलएच होता है। एंड देन देयर इज कॉर्टिकोट्रॉपिक रहता है, दैट इज एसीटीएच। ठीक है, उसके बाद देयर इज वन मोर हार्मोन कॉल्ड एज एडीएच। देयर इज वन मोर हार्मोन दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन, okay, also called as the pitocin. And then there is one more hormone found in the animals called as MSH, melanocyte stimulating hormone. तो ये सारे, अच्छा इसके साथ प्रोलैक्टिन करके एक आता है which is another hormone released by pituitary, prolactin, तो ये एक हार्मोन होता है। ठीक है, so these are all the hormones released by pituitary, करेक्ट। तो ये सब को स्टिमुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस के पास क्या रहेगा, हाइपोथैलेमस के पास रहेगा अपना खुद का रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन बेसिकली श्रावणी वर्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द यूटेराइन मसल्स एंड हेल्प्स इन डिलीवरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बर्थ हार्मोन। ठीक है, एंड प्लस इट हेल्प्स इन रिलीज ऑफ द मिल्क, breast milk after the delivery. When the baby starts sucking the milk, that time it releases the it helps in release of the milk, so it's called as milk ejection hormone. Prolactin is basically found in the girls, and that is basically responsible for what, development of the, rather it prepares the mammary gland for the production of the milk. Okay, so that is the work done by the prolactin. मतलब प्रोलैक्टिन मिल्क बनाने का प्रोसेस चालू करेगा, ऑक्सीटोसिन मिल्क को रिलीज करने का प्रोसेस चालू करेगा। ठीक है, so that this is during pregnancy, this is after pregnancy, and during delivery also oxytocin will be required, so it is called as the birth hormone. लैक्टोज मतलब मिल्क ना दिया, इसके लिए लैक्टिन, इसके लिए वो लैक्टिन ऐसा आया है। MSH is melanocyte stimulating hormone. It is known as melanocyte stimulating hormone. Okay, and this hormone is found in the animals, not in the humans. जो मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, मेलानोसाइट क्या करते हैं, स्किन पिगमेंटेशन में काम में आता है, करेक्ट, तो उसमें काम में आएगा। लेकिन हमारे लिए, हमारे मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करने के लिए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं है। यस, मेलानिन इज द पिगमेंट, करेक्ट, द वन व्हिच प्रोवाइड्स कलर टू द स्किन। ठीक है आदित्य? यस। लेकिन ये सारे हार्मोन्स अगर रिलीज होने पिट्यूटरी से तो कौन चाहिए, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के पास क्या चाहिए, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, है ना। तो बेचारा हाइपोथैलेमस देखो ना, इतना सारा काम कर रहा है, पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन भाव कौन खा जा रहा है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी मेहनत करे कोई और फल खाए कोई, ऐसा हो गया हमारे हाइपोथैलेमस के साथ। तो हाइपोथैलेमस हमारे लिए बन गया महाभारत का कर्ण, और फायदा हो गया अर्जुन का, मतलब पिट्यूटरी का।
समझा? पता नहीं कितने लोगों को समझा ये। चलो बढ़िया है, नाइस। तो ये समझा आपको, ये दिस इज ऑल क्लियर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो बस फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स आते हैं, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, एंड देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो ये सब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा स्पाइनल कॉर्ड। फिर ये खत्म होने के बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम लोगों को पढ़ने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर, ओके, ग्लैंड का पोजीशन कहाँ पे रहता है वो, और उसके बाद ग्लैंड का फंक्शन। और जैसे ही ग्लैंड का फंक्शन हो जाएगा, डिसीजेस रिलेटेड टू दैट, हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपोसिक्रीशन विल लीड टू व्हाट टाइप ऑफ डिसीजेस। तो ये सब हम लोगों को, ये 2 चैप्टर्स है जिसमें हम लोग को ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, दिखने के लिए आसान है लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ा सा मुश्किल। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये चालू किया था, इफ यू रिमेंबर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सेम फंक्शन विल बी परफॉर्म बाय द सेम सेल, मल्टीसेल्युलर में देयर विल बी डिवीजन ऑफ द लेबर, सो एवरी फंक्शन इज परफॉर्म बाय, कौन सा लास्ट स्लाइड लोहिता, ये इसके पहले वाला, ये तो पिट्यूटरी के हार्मोन है। ओके, ठीक है, वेर देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सो एवरी फंक्शन इज परफॉर्म बाय डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम। ठीक है, so there is requirement of control and coordination. Why? Because for every function we have different organ and system, and all these organs and systems should work in coordination. दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और एक दूसरे के साथ मिलकर अगर काम करना है तो naturally what they will require a proper coordination. So that coordination done with the help of nervous system and endocrine system. तो ये दोनों मिलकर coordination का काम करेंगे। ठीक है, so it is done by nervous system and hormonal coordination, that is endocrine system. अच्छा, because these two systems are working together ना, therefore we call this as what? We call this as neuroendocrine system, क्योंकि दोनों साथ में काम करते हैं ना, तो इसके लिए उसको नाम दिया गया है न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, समझा? हेलो, Yes, sir. अगर हाइपोथैलेमस इज नॉट देयर देन वी कैन डाई। यस, ऑब्वियसली मरेंगे ना यार। हाइपोथैलेमस का और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ना, इट कंट्रोल्स दी इनवॉलंटरी एक्शंस आल्सो। आपके इमोशंस, आपका हंगर, आपके एंगर, आपका थर्स्ट, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये स्लीप इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस ही नहीं रहेगा तो कौन जिंदा रह पाएगा? कोई नहीं। तो मतलब हाइपोथैलेमस को अगर हम लोग निकाल देंगे तो पर्सन मर जाएगा। सो फाइंड आउट द हाइपोथैलेमस एंड रिमूव इट एंड द पर्सन विल डाई। हे नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो एनीवे, ये हो गया हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो उसमें से नर्वस सिस्टम हम लोगों ने शुरुआत किया था, इफ यू रिमेंबर, या एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ये लिखा है ना सब आपने? Yes, sir. हाँ, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एंड विल हैव अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होता है। अगर नहीं मरा तो अच्छी बात है, जिंदा रहो फिर अमन। नर्व नेट सिस्टम रहता है हाइड्रा में, गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम इन कॉकरोच जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, देन ह्यूमन बीइंग का हाईली डेवलप्ड सिस्टम। ओके, सो द एंटायर नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सीएनएस के 2 पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस के 2 पार्ट्स आते हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनॉमिक के 2 पार्ट्स आते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, ये सब पढ़ना है आपने को, एक एक करके पढ़ेंगे। Autonomic nervous system basically is semi-autonomic because it controls all the internal organs. So for many functions it is not dependent on the brain. इसके लिए उसको बोलते हैं semi-autonomic. Okay, चलो अभी meninges भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? meninges लिखा है ना आपने कि नहीं लिखा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, so basically there is, just like any other organ in the body, brain and spinal cord will also have its covering called as the meninges. So there are 3 layers of meninges. So it is basically a type of connective tissue along with the blood vessels. हाँ, सिर्फ connective tissue नहीं रहेगा, blood vessels भी रहेगा, and it surrounds the entire central nervous system. जैसे we have the outermost covering called as the cranium, which is the bone. उसके नीचे रहता है ब्रेन, और क्रेनियम और ब्रेन के बीच में रहेगा ये 3 लेयर्स।
तो ये तीनों लेयर्स को हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। ओके, जैसे पहला वाला जो लेयर आता है दैट इज नोन एज ड्यूरा मैटर। सेकंड मिडिल लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरिकनॉइड मैटर। वेरी गुड दिया। एंड द थर्ड लेयर इज नोन एज द पाया मैटर। ठीक है, सो बिटवीन देयर इज अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड एरिकनॉइड मैटर कॉल्ड एज द subdural space, and space present between the arachnoid and pia matter is known as subarachnoid space. Sub meaning below, arachnoid मतलब arachnid। अच्छा, arachnid मतलब ये web like, can you see web like structure दिख रहा है ना बीच में, so it appears like a web like structure, तो इसका मतलब arachnoid matter। Okay, subdural fluid will have space will have the serous fluid, whereas subarachnoid space will have CSF, that is cerebrospinal fluid। Okay, now this is how the chart is। ये चार्ट देखा था क्या हमने? नो सर। नो सर। चलो अभी यहां से शुरू करने, चलो देखते हैं। मेनिंग्स मतलब द टाइप ऑफ मेनिंजेस, देन इट्स अदर नेम, इट्स पोजीशन, कंपोजिशन मतलब किससे बनता है, कौन से टिश्यू से बनता है और उसका फंक्शन क्या रहेगा। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड दिस, ये आपको बाद में लिखना है। ओके, नाउ मेनिंग्स कौन सा है? सबसे पहला आउटर मोस्ट इज ड्यूरा मैटर, अभी सेकंड वन इज द एरिकनॉइड एंड द थर्ड वन इज द पाया मैटर। ड्यूरा का मतलब आता है टफ, और मैटर का मदर आता है मतलब आता है मदर। ठीक है सर मास्टर मतलब बताया ना, मैटर मतलब सो इट्स लाइक अ मदर, ऐसा है मतलब टफ मदर, मतलब इट्स अ कवरिंग, इसके लिए उसको बोला गया टफ मदर। वैसा ही एरिकनिड्स का मतलब आता है वेब लाइक, सो इट इज वेब लाइक मदर। एंड पाया मैटर मतलब जो तुम्हारे स्कूल में होता है, तुम्हारे साथ होता है, वो वाला मैटर नहीं, वो अलग, ये मैटर अलग है। ठीक है अमन, हाँ, या तो अमन बोलेगा मैटर हो गया सर। ठीक है, एंड पाया का मतलब आता है सॉफ्ट, सो इट्स अ सॉफ्ट मदर। अभी पोजीशन, यू ऑल नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ड्यूरा मैटर, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहर ड्यूरा मैटर रहेगा, फिर उसके बाद मिडिल में रहेगा एरिकनॉइड मैटर, फिर उसके बाद इनर मोस्ट विल बी द पाया मैटर। Now, because dura matter is the outermost covering, therefore it will be made up of connective tissue. So avascular formed by fibrous connective tissue. When I say avascular, matlab there is no blood supply. ठीक है, blood supply नहीं होता है। Whereas arachnoid matter will have the combination. Yes, protecting covering बोल सकते हैं, and the most protective person in our families are mother, ऐसा बोला जाता है। Though father will always be there, लेकिन mother is the prime. Why? Because the baby and every person has a direct connect with the mother right since the time when we are developing. ठीक है, इसके लिए उसको मैटर की जगह मदर बोला जाता है। समझा लोहिता? So that is how the understanding is, क्योंकि ये प्यार से ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। चलो, एरिकनॉइड मैटर बेसिकली विल हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब ब्लड सप्लाई प्लस फाइब्रस, सो इट्स गोइंग टू बी वैस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई रहेगा, एंड फॉर्म बाय रेटिक्युलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिक्युलर मतलब नेटवर्क। ओके, तो ये नेटवर्क बना देगा, सो ये कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा अलग होता है। एंड पाया मैटर इज गोइंग टू बी हाईली वैस्कुलर, मतलब ये सिर्फ ब्लड वेसल से ही बनता है ना। Because dura matter is made up of only connective tissue, so it will have what function? So the only one function, that is protection. Because arachnoid matter is made up of both the connective tissue plus the blood vessels, so it will have two functions. कौन सा? Protection and nutrition. Blood vessels will carry blood and blood will help in nutrition. And last, which is the pia matter, which is made up of only blood vessels, so it will have only one function, that is nutritive. चार्ट समझ में आ रहा है सबको? यस। गुड, चलो अब ये चार्ट ऐसा का ऐसा ही लिख देने का है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा। प्लीज राइट दिस डाउन एज इट इज।
हो गया क्या? Yes, क्या sir. हुआ अमन? अमन इतना टेंशन लोड मत ले रहे. यू कैन रिमेम्बर दैट एज ड्यूरा मैटर, अरिकनॉइड मैटर, पाया मैटर, नो प्रॉब्लम. अदर नेम वैसे भी नहीं आएगा. ओके, फिनिश्ड. हाँ हाँ, चलो चालू करते हैं नेक्स्ट पार्ट. ये तो हो गया हमारा टिपिकल बेसिक्स ऑफ व्हाट दिस यू कैन से the three layers of meninges which are known to cover the entire brain and the spinal cord. Now if there is an infection to the meninges को अगर infection होता है तो we call this condition as meningitis. Okay, meningitis नाम का एक कंडीशन आता है. आइटिस मतलब infection of the meninges is the meningitis. अभी कैसे पता चलेगा? So you have to basically remove the CSF को आपको निकालना पड़ेगा और CSF को आपको टेस्ट करना पड़ेगा. तो एक बेसिक टेस्ट होता है. We remove some amount of CSF, some particular ml of CSF, and we will keep this CSF standing in the test tube. Okay, ऐसा टेस्ट ट्यूब में इसको ऐसा स्टैंडिंग रखते हैं like this for some time. Okay, suppose यहाँ तक है तो we wait and observe the overall results. Suppose if the CSF is red colored, अगर CSF निकाला और वो लाल कलर का है मतलब there is what? There is hemorrhage. Okay, hemorrhage मतलब वहां पे कुछ तो भी डैमेज हुआ है, ब्लीडिंग हुआ है. सो वी कॉल, जैसे बोलते हैं ना ब्रेन हेमरेज हो गया, तो वो यहाँ पे होता है एक्चुअली ब्लीडिंग. तो वो कैसे पता चलेगा? जब CSF लाल रहेगा तब. सपोज CSF appears cobweb like, मतलब थोड़ा सा ऐसा वेब लाइक दिखने लगेगा CSF आफ्टर स्टैंडिंग, देन इट्स अ केस ऑफ meningitis. Okay, and nowadays meningitis is because of major two reasons. One is basically tuberculosis, so we call that as tubercular meningitis. Matlab there is a strong past history of patients suffering from tuberculosis, so that patient is likely to suffer from meningitis. And then there is another very common cause is the AIDS. The person is suffering from AIDS. HIV infected person now suffering from AIDS can suffer from meningitis. Get in this? समझ में आ रहा है क्या? So these are the two commonest causes for meningitis nowadays. बाकी होता है लेकिन वो इन्फेक्शन अभी बहुत रेयर है, not so common this. ठीक है. Now अभी as we said that sub arachnoid space में एक fluid होता है, so that fluid is known as the CSF. Now CSF is present between the arachnoid matter and the pia matter, and you can see here CSF is present inside the brain also. So what are these internal structures? So basically it is present in the subarachnoid space, लेकिन brain के अंदर भी ना छोटे छोटे cavities होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ventricles. So there are 4 ventricles of the brain, and then the CSF is present inside the ventricles as well, and ventricles are present inside the brain. So basically it is like CSF is present outside the brain as well as inside the brain. So that is how it is helping in maintaining the structural stability and protecting the entire brain. Get in this? आप देखो spinal cord के अंदर भी CSF है. Can you see? ये वाला. This is known as spinal cord के अंदर का कैनाल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, और सेंट्रल कैनाल के अंदर भी CSF होता है. मतलब CSF is present around the brain as well as inside the brain. CSF is present around the spinal cord as well as inside the spinal cord. Correct? And that is how it helps in the protection purpose. So again, central canal of the spinal cord, there also you will find that the CSF is present. So this is the exact position where the CSF is present. इसे लिख लो. 1-2 मिनट रुको.
आया guys, just give me 2 minutes. There is one important parent who has come up. Just 2 minutes. चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा एक टिपिकल पोजीशन ऑफ द सीएसएफ कि हाउ एंड वेयर द सीएसएफ इज प्रेजेंट। ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट इन एंड अराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नाउ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? तो सबसे पहला, नाउ इट इज प्रेजेंट इन द subarachnoid space, ventricles and central canal of the spinal cord. It is alkaline in nature with a pH which is 7.33, so that is the pH of the CSF, so it is alkaline in nature. Then it is a clear fluid, ठीक है, like a water, तो पानी की तरह एकदम clear fluid रहता है. The approximate amount of CSF present in the brain, around the brain and spinal cord is 120 ml. पूरा मिला के, अंदर बाहर का सब मिला के, it is around 120 ml. What are the constituents? क्या क्या होता है? Now, अच्छा, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? So basically it is produced by the choroid plexus and ependymal cells. जैसे for example we have a ventricle. Ventricle का मतलब क्या आता है? Ventricle का मतलब आता है एक cavity. तो suppose we have a ventricle like this, ठीक है, एक ऐसा ventricle है, तो ये ventricle को यहाँ पे ऊपर ये रूफ है, बराबर है, ये ऊपर का ऐसा रूफ है. सो दिस पर्टिकुलर रूफ विल हैव द स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज द एपेंडाइमा सेल्स और एपेंडाइमल सेल्स, एंड these ependymal cells will secrete CSF. Plus it has the choroid plexus. Choroid plexus मतलब network of neurons. न्यूरॉन्स का ही नेटवर्क होता है which has the attachment with the neuroglial cells. तो ये मिलकर ये बनता है. तो all these cells are known to produce the CSF. And what are the contents? CSF के अंदर क्या क्या होता है? तो CSF के अंदर basically it has the glucose, ठीक है, it has the proteins. Okay, other than that it has all the different types of minerals. सारे minerals CSF के अंदर होते हैं, ठीक है. So they are the main elements. Of course water is one of the important, यानी water से ही बनता है, तो water is another constituent. So these are all the, and of course the waste material, if at all if it is released from the brain or the meninges, so that will be present in the CSF. लेकिन ये सब होता है which will help in overall functioning of the CSF. So what are the functions? इसका काम क्या होते हैं? तो basically CSF will help in protection. So it prevents the friction between the meninges. क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, करेक्ट. ड्यूरा मैटर थोड़ा सा बाहर होता है, लेकिन एरेक्नॉइड और पाया मैटर बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी सब एरेक्नॉइड, मतलब एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में होता है ना. सो इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिटवीन द मेनिंजेस, नंबर वन. CSF विल मेंटेन द प्रेशर इन एंड अराउंड द ब्रेन, ब्रेन के बाहर और ब्रेन के अंदर ये प्रेशर को मेंटेन करेगा. प्लस इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, तो उसमें ये काम में आएगा CSF. वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द मेनिंजेस विल बी रिलीज्ड इन द CSF, CSF से बाहर जाएगा, and the nutrients will be given by the CSF which are produced there, and CSF also helps to supply oxygen to certain extent, बहुत ज्यादा large लेवल पे नहीं होता है, वेरी माइनर लेवल पे. एंड CSF प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम डेसिकेशन. डेसिकेशन मतलब डैमेज, डिस्ट्रक्शन, चेंज ऑफ पोजीशन, तो हिलता नहीं है, मतलब इट विल रिमेन फिक्स्ड इन वन पोजीशन. और ये जो MRI में पल्सेशन जो दिखाया गया है ना, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द CSF, क्योंकि CSF इज अ कांस्टेंट सर्कुलेटिंग फ्लूइड. सो पल्सेशन का मीनिंग आता है मूवमेंट की वजह से होने वाला एक टिपिकल disturbance in the fluid, wavy disturbance in the fluid. So that's called as the pulsation. So you can see the waves of CSF in the MRI. Okay, so that is pulsation. So these are all the functions of CSF. And as I said, CSF is present where? So CSF is basically present between the arachnoid matter, ठीक है, it is present between the arachnoid matter and it is present between the pia matter, correct. So together, क्योंकि ये दोनों इतने क्लोज होते हैं, they are very close to each other, मतलब ये structurally very close to each other, therefore together we call this as leptomeninges, ठीक है. So arachnoid matter और pia matter दोनों मिलकर बनता है leptomeninges. Okay, yes Pragya, you want to say something?
प्रज्ञा ने हाथ ऊपर किया नहीं, चलो ठीक है। क्या हुआ प्लस वीओ फ्लूइड मतलब क्या? Anyway, so this is nahi, leptomeninges is the name given to the this arachnoid matter and pyometer because they are close to each other. इसके लिए उसको leptomeninges बोलते हैं. Doesn't include the space. Okay, समझ में आ रहा है सबको ये? Sir, will you please show the last slide? Yeah, I'll show you. सर मतलब वो दोनों layers plus fluid नहीं fluid नहीं, fluid छोड़कर सिर्फ दोनों layers. ये लास्ट स्लाइड है. Done, sir. हो गया सबका लिख के ये? या these are the functions of CSF. बताओ नुपुर. प्रज्ञा बोलो, क्या बोलना है आपको? Sir, what is the meaning of CSF? Cerebrospinal fluid. Sir, Yes. सर सेरिब्रोस्पाइनल कॉर्ड के पहले के स्लाइड दिखाए ना, मैं डिस्कनेक्ट. Cerebrospinal cord नहीं, cerebrospinal fluid के पहले का स्लाइड. हाँ, कौन सा? ये वाला? इसके पहले. This one. यस सर. डन सर, थैंक यू. हो गया? यस सर. डेसिकेशन का सृष्टि मीनिंग आता है that it doesn't allow that brain to change its structure, मतलब ड्राई अप भी नहीं होने देता या फिर बहुत ज्यादा वेट भी नहीं रखता है उसको. So it maintains the size and shape of the brain. So that's called as desiccation. ठीक है, चलो हो गया सबका लिखे ये. CSF is done. Right, so this is about the cerebrospinal fluid. अभी हम लोगों को पढ़ना है actual brain, the entire brain. अभी बाहर से जब हम लोग ह्यूमन ब्रेन देखते हैं तो it looks something like this. हम लोगों को इस तरीके से दिखता है. But this is not the entire brain. This is the part of the brain. तो ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, this is called as the cerebrum. इसको हम लोग बोलते हैं cerebrum. Right? So बाहर से ऐसे दिख रहा है लेकिन बहुत सारे पार्ट्स इसके अलग अलग होते हैं एंड दैट टुगेदर विल फॉर्म दिस एंटायर स्ट्रक्चर नोन एज द ब्रेन. Now, basically, brain will have its work connected to the breathing as well as, circulatory system, meaning beating of the heart, peristaltic movement, sleep or dream. Basically, whatever work which we are doing, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, everything is under the control of brain. ठीक है, your thoughts, your feelings, your anger, your thirst, your hunger, your dreams, your sleep, your activities, तो everything is under the control of brain. जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो it is actually controlled by the brain. अगर आप सुन रहे हो और वो लिख रहे हो तो again it's a control done by the brain. So everything is under the control of the brain.
So brain basically is present, is one of the most important or a prime organ. So it is considered as the control system of our body. हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोल सिस्टम है ये, एंड दैट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट इन द हेड. ठीक है. So naturally it is present in the head inside a bony covering. That covering is known as cranium. Okay, since it is present inside the head, therefore it is n का मतलब आता है n in scientific term, and head का meaning आता है cephalon और cephalon. Okay, head in scientific term for head is the cephalon और cephalon बोल सकते हैं हम लोग इसको. टुगेदर ये दोनों मिलकर बनता है आपका एनसेफेलॉन. इसके लिए ब्रेन को बोला गया है एनसेफेलॉन और एनकेफेलॉन. ठीक है, एक मिनट. हाँ, समझ में आ रहा है सबको ये वाई इट इज नोन एज एनसेफेलॉन और एनकेफेलॉन? इसके लिए जब ब्रेन का इन्फेक्शन होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनकेफेलाइटिस और एनसेफेलाइटिस. ठीक है, बिकॉज एनसेफेलॉन इज द ब्रेन, सो द इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन इज एनसेफेलाइटिस. Right, as I said, this is the entire typical structure of the brain. So as it is present, this is how it is present in the brain, and therefore it is also called as the encephalon. So that is the name given to the brain. Now what is the test to record the brain wave? Brain waves होते हैं क्योंकि neural control and coordination है. So मतलब neurons are releasing the impulses. So those impulses are basically recorded, and they're recorded with the help of a important recording machine or a mechanism known as EEG, stands for electroencephalogram. जैसे हार्ट के लिए होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वैसा ब्रेन के लिए होता है EEG, called as electroencephalogram. And this EEG helps us to identify the waves, and accordingly we can actually understand the activity of the brain. How is the brain protected? So it is protected from outside by a structure, a brain box, or a part of the skull called as the cranium. I am specifically saying part of the skull. ये ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं cranium. So it is completely covered from outside by the cranium, and other than cranium, मतलब cranium रहेगा, cranium के बाद अंदर क्या रहेंगे? meninges, और उसके बाद फिर आएगा आपका brain. Get in this? ठीक है. Now average weight of the brain is, adult human beings brain is 1300 to 1400 grams. So that is the average weight. The volume of the brain is 1300 to 1500 cc's or ml. That is the volume of the brain. So it's a hollow, soft, large sized, slightly flattened structure. It is grayish whitish in color, whitish grayish. Okay, it is whitish grayish in color and has approximately 30,000 million or 30 billion neurons. ठीक है, and the brain, entire brain will develop to full size by the age of 6 years. ये hard facts है, you just have to write them down क्योंकि इसमें कोई change नहीं है. Einstein का weight of the brain was 1250 grams. That was the weight of the Einstein's brain. Supposed to be a small brain, but still used well by him. So that's why उसका काम अच्छा है. Okay, लिखो इसको.
चलो shall we? Yes, yes, bye bye. सर आज टीचर्स मीटिंग नहीं है, लेकिन लॉट ऑफ वर्क, अदर वर्क इज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है आज के लिए, पता नहीं क्यों. एनीवे, सो नाउ थोड़ा ध्यान दो इधर ना, अभी दिस पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. द एंटायर स्ट्रक्चर, एज आई सेड, जो बाहर से दिखता है वो ब्रेन नहीं होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन. Now, how the division of this entire encephalon is? So it is divided into three major regions. कौन सा? There is front region of the brain called as the forebrain. Then we have the middle region known as the midbrain, and the tail region जो सबसे पीछे होता है उसको बोलते हैं हम लोग hind brain. It is called as hind brain and not hind brain. Okay? अच्छा, forebrain is known as prosencephalon. Prosen मतलब front, cephalon मतलब brain. Midbrain is known as mesencephalon. Mesen का मतलब आता है middle and cephalon का meaning आता है brain. And hindbrain is known as the rhombencephalon. Rhomben का meaning आता है behind. Okay, so these are the scientific names: prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. So these are the scientific names of these three structures. ठीक है, आई डोंट नो ये चार्ट वैसे उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है, पता नहीं. या यहां से आप लिख सकते हो. ठीक है, ये तीन पार्ट हो गए. One is the forebrain, that is called as prosencephalon. Second one is the midbrain known as mesencephalon. Third one is the hindbrain called as rhombencephalon. Further, forebrain is divided into three parts. फोरब्रेन के फिर तीन पार्ट्स आते हैं. कौन कौन से? तो सबसे पहला आता है, दैट्स कॉल्ड एज द ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्सो नोन एज राइनेंसेफेलॉन. ऑल्फैक्शन मतलब सेंस ऑफ स्मेल, जो हम लोग लेते हैं नोज से. राइनोज का मीनिंग आता है नोज, इसके लिए राइनेंसेफेलॉन. सेकंड पार्ट इज नोन एज सेरेब्रम, ऑल्सो नोन एज द टेलेंसेफेलॉन. Okay, and the third part is diencephalon, also called as thalamencephalon. Diencephalon को thalamencephalon इसके लिए बोला जाता है because it has an important structure known as thalamus. Okay, इसके लिए उसको बोला गया है thalamencephalon. Okay, अच्छा, सेरेब्रम को टेलेंसेफेलॉन बोलते हैं बिकॉज इट हैज दी कवरिंग ओवर इट, यानी पैलियम और नियोपैलियम नाम का एक स्ट्रक्चर आता है. सो टू दैट इट इज कनेक्टेड, इसके लिए उसको बोला गया है टेलेंसेफेलॉन. सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. हाँ, चलो गुड. नाउ ये तीन पार्ट हो गए हमारे फोर ब्रेन के. ओके, चलो अभी सेरेब्रम के अंदर, टेलेंसेफेलॉन के अंदर वी हैव टू वेंट्रिकल्स, क्योंकि सेरेब्रम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर. सपोज ये एक है और ये दूसरा है, मेरा हाथ देखो. सो ये एक हेमिस्फीयर बनेगा, ये दूसरा हेमिस्फीयर बनेगा. इस तरीके से ऐसे दो हेमिस्फीयर्स है सेरेब्रम के. तो एक हेमिस्फीयर में एक वेंट्रिकल, दूसरे हेमिस्फीयर में दूसरा वेंट्रिकल. सो इट हैज टू वेंट्रिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से थोड़ा सा दूर है, इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल, और ऑल्सो कॉल्ड एज द पैरासील. पैराकोयल बोलने का नहीं, इट इज कॉल्ड एज पैरासील और ऑल्सो नोन एज द लैटरल वेंट्रिकल. सो फर्स्ट टू वेंट्रिकल्स. ओके, whereas डायनसेफेलॉन विल हैव द थर्ड वेंट्रिकल. तीसरा वेंट्रिकल होता है डायनसेफेलॉन के अंदर. वेंट्रिकल मतलब कैविटी इनसाइड द ब्रेन. ओके, सो इसको बोलते हैं डायनसेफेलॉन, विच इज, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन द डायनसेफेलॉन बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द डायनसेफेलॉन एंड इट्स अ टाइप ऑफ कैविटी. तो कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? सील. किसके अंदर है? डायनसेफेलॉन के अंदर. इसके लिए क्या बोला? डायोसिल. समझा? बट बोथ वेंट्रिकल शुड बी कनेक्टेड. दोनों वेंट्रिकल का कनेक्शन आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल we have this one first lateral ventricle, we have this second lateral ventricle, and we have this diencephalon. ऐसा है, तो ये भी कनेक्ट हो जाना चाहिए ना एक दूसरे के साथ. So all these three ventricles, that is lateral ventricle and diocele, they are all connected by a canal or a cavity, and that cavity is known as the foramen of Monro. Okay,
तो ये इस तरीके से कैविटी बन जाएगा यहां से और ये यहां से। सो ये वाला जो है दिस इज नोन एज फोरामेन ऑफ मोनरो। समझ में आ रहा है? So this is connecting all these three chambers with each other. So these are the parts of the forebrain. Parts of the forebrain समझ में आया? किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लो. If you have any doubts, please ask. Yes or no? Okay, good. चलो. Next, midbrain. Midbrain is further divided into two parts, also known as the mesencephalon. Now, what are the parts of the midbrain? तो सबसे पहला आता है that's called as the crura cerebri, or also known as cerebral peduncle. And then the second part is known as corpora quadrigemina. Corpora मतलब corpus. Corpus का मतलब आता है body. Quadri का meaning आता है four. Genu का meaning आता है elevation. समझ में आया? So it is called as four elevated bodies. Corpora quadrigemina. Also पहले उसको बोला जाता था optic lobes. And cerebral crura cerebri is known as cerebral peduncle. Peduncle मतलब क्या? Stalk. So it appears like a stalk of the cerebrum. मतलब अगर ये ऐसा cerebrum है तो somewhere here you will find that the structures are present like this. ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा. यहाँ पे ये दो एलिवेशन मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है इसके लिए, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर और बीच में से ऐसा एक स्ट्रक्चर जाएगा. ठीक है, तो एक छोटा सा सेरेब्रम का दंडी, इसके लिए उसको बोला गया है क्रूरा सेरेब्राई और सेरेब्रल पेडेंकल. ना इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने वेंट्रिकल्स पढ़े थे, कौन कौन से? फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल. दीज थ्री वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय व्हाट? फोरामेन ऑफ मोनरो. वेरी गुड, फोरामेन ऑफ मोनरो. फिर यहां से नीचे जो पार्ट होता है दैट इज मिडिल ऑब्लोंगेटा, उसके अंदर होता है फोर्थ वेंट्रिकल. मतलब और ये दोनों के बीच में मिडिल ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन. मतलब ये दोनों के बीच में क्या रहेगा? मिड ब्रेन. तो यहां से ना एक कैनाल जाता है मिड ब्रेन से नीचे towards the fourth ventricle. So that canal is known as aqueduct of Sylvius or aqueduct of Eater. Okay, so it is called as the aqueduct of Sylvius or aqueduct of Eater, and it is connecting to whom? This is first, this is second, this is third. तो naturally ये किसको connect करेगा? Third is connected to the fourth ventricle, which is present between the pons and medulla. Correct? समझ में आ रहा है? This is how all the ventricles are getting connected to each other. Okay, तो अभी बचा कौन? तो बचा है हमारा hind brain, also known as the rhombencephalon. Further divided into three parts. इसके तीन पार्ट आएंगे. कौन कौन से? सबसे पहला पार्ट आता है that's called as the pons varoli. Last slide. ये last slide. हो गया? Yes, sir. ओके, सो हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स आएंगे. सबसे पहला था pons varoli, which is nothing but a small elevated body. Then comes the cerebellum, metencephalon. ठीक है, tail region इसके लिए उसको बोला गया metencephalon. And the last one is the medulla oblongata, also known as myelencephalon. medulla को बोला गया है myelencephalon. ठीक है, so these are the three important parts of the hind brain. अभी इसमें बचा कौन है? फोर्थ वेंट्रिकल. बराबर है. So fourth ventricle is present between the medulla and pons. दोनों के आजू बाजू में थोड़ा सा बीच में रहता है. And this fourth ventricle is connected to the third ventricle. ठीक है, through the aqueduct of Sylvius. As I said, part of it is present near the pons, part of it is present near the medulla. So there the fourth ventricle is present, and this fourth ventricle connects fourth is connected to third ventricle by aqueduct of Sylvius or aqueduct of Eater. ठीक है, और also known as cerebral aqueduct, ऐसा भी बोलते हैं उसको. Okay, so this is how, जैसे same diagram, first ventricle, second ventricle, third ventricle, तीनों किससे कनेक्ट हुआ? फोरामेन ऑफ मोनरो.
फिर नीचे आया फोर्थ वेंट्रिकल, ये किससे कनेक्ट हुआ? एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस और एक्वेडक्ट ऑफ ईटर। लेकिन अभी भी ना ये कनेक्शंस पूरे नहीं हुए। कैसे? जैसे अभी यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल को तो ये कनेक्ट हो गया, बराबर है, बट नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज फोर्थ वेंट्रिकल जो है ना, यहाँ पे ये खत्म नहीं होता है। फोर्थ वेंट्रिकल गेट्स कनेक्टेड टू योर सब एरेक्नॉइड स्पेस। कैसे होगा? बाय टू lateral commissures or connectives and one median connective। तो ये जो दो lateral होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call them as foramen of Luschka। Okay, and this one is known as foramen of Magendie, and this one is again foramen of Luschka। ठीक है, तो मतलब ये हो गया। यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम निकाल रहा हूं। ये दो वेंट्रिकल्स फर्स्ट एंड सेकंड कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू द फोर्थ, फोर्थ से ऐसे 3 ट्रैक्स आएंगे एंड दे विल कम आउट लाइक दिस एंड देन दे विल कनेक्ट टू द सब एरेक्नॉइड स्पेस। एंड दैट इज हाउ द एंटायर CSF, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर भी CSF है और सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी CSF है, एंड दैट इज हाउ द सर्कुलेशन ऑफ द CSF विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? So 2 lateral openings called as foramen of Luschka and 1 median opening. So this is known as lateral opening. Okay, and this one is known as the median opening. MAGENDEE, foramen of Magendie। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सर हाँ, सर आप वो CSF का सर्कुलेशन वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं कंप्लीट हाँ, कैसे? अभी अलग से करूंगा मैं, डोंट वरी, अभी तुरंत करता हूं मैं अलग से। एक मिनट, देख अभी थोड़ा ध्यान दो इधर ना सब लोग। वेंट्रिकल्स की बात हो रही है, तो यहां मैं डायग्रामेटिकली वेंट्रिकल्स निकाल रहा हूं। वी हैव अ फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, फर्स्ट वेंट्रिकल, ventricle number 1 and 2 called as what? It is known as lateral ventricle, or also called as what? बोलो जल्दी, also called as Paracel। very good। Here we have a third ventricle, third ventricle is called as what? Diacel। Yes, diocele। Okay, so it is called as the diocele। Here we have the fourth ventricle, this is known as what? माइलोसिल। करेक्ट। अच्छा, ये सारे वेंट्रिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही होने चाहिए, अदरवाइज फिर CSF मूव नहीं हो पाएगा। सो हियर दीज टू, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल बाय व्हाट? बाय फोरामेन ऑफ मोनरो। करेक्ट। third ventricle is connected to the fourth ventricle by, yes, aqueduct of Sylvius और aqueduct of Iter। तो ये कनेक्शन है, करेक्ट। एंड एज आई सेड, so this is your first ventricle, this is your second ventricle, this is your third ventricle, this is your fourth ventricle। Fourth ventricle will show 2 lateral and 1 median opening। So 2 lateral are known as what?
two lateral openings called as what? Foramen of Luschka. Very good. To foramen of Luschka. And one median opening. This is known as what? Foramen of Magendie. of Magendie. और ये तीनों किसको कनेक्ट हो जाएंगे? All these three, ये तीनों भी किसको कनेक्ट हो जाएंगे? They will get connected to the subarachnoid space. ठीक है? So they will get connected to the subarachnoid space. अब समझ में आ रहा है? तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसे subarachnoid space रहेगा like this, to which it gets connected. Clear everyone? Yes, sir. हाँ, किसी ने मुझे पूछा था, उनको क्लियर हो गया? One girl had asked me this. Yes, yes. Sure? कौन था ये? इशिता. इशिता. हो गया ना बेटा क्लियर? हाँ सर. चाहे तो आप ये टेबल भी निकाल के रख सकते हो if you want to make it more simplified. ओके, ये इसका नाम है, ये इसका नाम है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, एंड दिस वन इज द subarachnoid space. ठीक, आगे बढ़े. Shall we move ahead now? हेलो, आप लोग लिख रहे हो क्या? Yes, sir. Finished? A4 stands for foramen of, हाँ, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है वो. Shall we, the boys and the girls? Yes, sir. हाँ, चलो, ये हो गया हमारा एक टिपिकल ओवरव्यू ऑफ व्हाट एंड हाउ द ब्रेन इज. ओके, सो अलग अलग पार्ट्स, और इसमें आएगा जैसे इफ आई हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ना, तो जैसे ये टिपिकल ऐसा ब्रेन का स्ट्रक्चर रहेगा. सो ये आपका सेरेब्रम वाला पार्ट है जो पूरा इस तरीके से रहेगा. इसके अंदर ना यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर आता है, दिस इज नोन एज कॉर्पस कैलोजम. और इसके नीचे डायनसेफेलॉन, और डायनसेफेलॉन के नीचे यहाँ पे रहेगा आपका मिड ब्रेन लाइक दिस. तो ये जो दो एलिवेशंस मैंने निकाले हैं ना, दिस टू एलिवेशंस आर नथिंग बट द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज स्क्रूरा सेरेब्रल, सेरेब्रल पेडेंकल. ओके, फिर यहां से चालू हो जाएगा आपका, सॉरी, so this is your typical structure of the cerebrum like this. Okay, ठीक है, ये ऐसे रहेगा like this. Fine. फिर यहाँ से ये नीचे चालू हो गया like this. So it's going to develop a structure called as the pons varoli, और उसके बाद यहाँ पे रहेगा आपका cerebellum, and then comes the medulla oblongata like this. ओके, सो ये वाला जो स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं अभी मैं, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द
aqueduct of Sylvius, and this aqueduct of Sylvius is going to form the connect the fourth ventricle. तो ये fourth ventricle को ऐसे connect हो जाएगा, right? तो ये structures आपको इस तरीके से दिखेंगे. So this is the typical structure of the brain, how it looks like. And this part, ये जो बड़ा सा elevated body है, this is known as the medulla oblongata, और medulla oblongata will continue with the spinal cord. तो spinal cord के ऊपर ना ऐसे लगता है कि ये spinal cord है और उसके ऊपर ऐसे एक बड़ा सा elevation आया है. So it appears like a bulb. इसके लिए medulla को spinal bulb ऐसे भी बोला गया है. Get in the structure. और बस बाकी ऐसे grooves and elevations रहेंगे, which is the part of your cerebrum. तो अभी हम लोग वो पढ़ेंगे क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है. So this is how the structure of the brain. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया है. Now we will study the first part of the brain, that is the forebrain. Forebrain also known as the prosencephalon, जिसका पहला आता है, first part आता है, that's called as the olfactory lobe. अभी नाम से पता चलता है. When I say olfactory lobe, meaning what? The one which is responsible for the sense of smell, olfaction. So as you can see here, it is present exactly in front of the root of the nose. Correct? It is completely hidden by the frontal lobe of the cerebrum. Cerebrum का पहला ये बड़ा सा lobe है इधर, उसके ऊपर ये covered है, and it has the nerves which will directly enter into the nasal chamber, so that whatever smell which enters in, यानी कोई भी chemical या air अंदर जाता है which carries a particular fragrance, so that will be received by these nerves. These nerves will carry it to the olfactory lobe. See how it is present. Okay, yes, correct. So the nerve is known as the olfactory nerve. Correct, Bhushan. So olfactory lobe, also known as the rhinencephalon. What is the position here? Now it is ventrally placed, मतलब front region में होता है, and covered by cerebral hemispheres. It is completely covered from above by the cerebral hemispheres. तीन headings आएंगे. सबसे पहला heading आएगा position, दूसरा heading आएगा structure, तीसरा heading आएगा आपका function. So what is the position of the part, what is the structure of the part, and what is the function? Okay, तो ये हो गया position olfactory lobe का. Now when we say structure, जब structure देखते हो ना तो इसके दो अलग अलग parts आपको मिलेंगे. So it's a small, solid and a paired structure which appears to be a club shaped. And as I said, it will show two parts. एक बड़ा सा elevated body आएगा, उसको बोलते हैं olfactory bulb, which is present as an anterior swollen part. और उसके बाद ऐसा stalk जैसा structure आएगा, दंडी जैसा structure आता है, is called as olfactory tract, which is the posterior tubular part. तो ये posterior tubular part है like this, and this one is the olfactory bulb. ठीक है, so typical structure मिलेगा आपको. मैं आपको ना कुछ videos दिखाने वाला हूँ, उसमें बहुत clearly दिखता है olfactory bulb and olfactory tract. So I will show you that video once we complete this part. Okay. चलो, what is the function? इसका काम क्या रहेगा? तो पता है olfaction है मतलब sense of smell है, बराबर है. So basically it perceives the sense of smell, and sense of olfaction is the oldest sense. ठीक है, but it is poorly developed in humans and highly developed in dogs. Okay, dogs में सबसे ज्यादा developed होता है, so इसको बोलते हैं rhinosil. Okay, ये last slide. Divya. Done? Done, sir. And function एक ही होता है, sense of smell होता है, which is considered as the oldest function. Humans में it is not so distinctly developed, क्योंकि humans का फिर that is why हमारा जो sense of smell होता है ना थोड़ा सा weak होता है. Dogs में it is very well developed. Animals में होता है, especially in the dogs. ठीक है, dogs में this particular lobe is highly developed, तो इसको हम लोग बोलते हैं rhinosil. Dogs में वो लोब को बोला जाता है rhinosil rather than rhinencephalon. In dogs it is called as the rhinosil, and here it is well developed. ठीक है, समझा सबको ये? So this is your first part, and that first part is known as the olfactory lobe.
अभी आता है हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज सेरेब्रम. बट सेरेब्रम नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट, वी विल स्टॉप हियर, क्योंकि सेरेब्रम बहुत बड़ा पार्ट है. इट विल टेक एटलीस्ट द एंटायर लेक्चर. मेरे ख्याल से 2 घंटे आराम से चले जाएंगे इसमें, ऐसा लगता है मुझे. डिपेंड्स हाउ आप यू पीपल आर रिसीविंग इट. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर नाउ. और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट मीटिंग में, आफ्टर हाफ एन आवर अगेन वी आर मीटिंग विथ लोकोमोशन एंड मूवमेंट. फाइन, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर. Bye, See sir. you again. Thank you, sir. Thank you, sir. मिलते हैं. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. Bye. थैंक यू सर.